Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate. In the previous lecture we discussed about the fourth state of matter, that is the plasma state, where we discussed that plasma is simply the mixture of positively charged ions and electrons, which is formed due to the superheating of gaseous state. Today we will discuss the fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate. In the year 1924, an Indian scientist Satyendra Nath Bose and Einstein predicted the fifth state of matter, but they could not prove its existence. It was only in the year 1995, two scientists, Eric A. Cornell and Coral V. Mann, in 1995, these two scientists, Eric A. Cornell and Coral V. Mann, created the fifth state of matter using the gas containing rubidium atoms. They cooled the gas containing rubidium atoms to a temperature very close to 170 nanokelvin and attained it is Bose-Einstein condensate. After some time, another scientist, Wolfgang Catterley created the Bose-Einstein condensate using the gas containing sodium atoms. And in the year 2001, these three scientists were awarded with Nobel Prize. Now let us see what exactly the Bose-Einstein condensate is. When a gas of bosons is cooled to a temperature very close to absolute zero, that is minus 273 degrees Celsius, the bosons lose their identity and behave like a single superatom. मान लो अगर हम किसी बोजान के गैस को, bosons are those atoms where we have the sum of protons, sum of electrons and sum of neutrons is equal to the even number, then it is the boson. If the sum of protons, electrons and neutrons is odd, then it goes into the category of fermions. अगर हम किसी बोजान की गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, इसका टेम्परेचर हम बहुत डिक्रीज करेंगे, यानी कि टिल एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. अगर हम इस टेम्परेचर तक इसको ठंडा करेंगे, जो ये बोजान्स हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, और ये क्या बिहेव करते हैं, सिंगल सुपर एटम. ये जैसे मान लो अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं बोजान्स के, ये बिहेव करते हैं जैसे कि हमारे पास सिंगल एटम है. जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं टिल एब्सोल्यूट जीरो, ये बिहेव करते हैं लाइक ए सिंगल सुपर एटम. इस चीज़ को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स. As we know that the matter has dual character, that is matter has both particle character and a wave character. According to de Broglie,
According to de Broglie, Broglie's hypothesis, any particle of matter that has linear momentum, any particle of matter that has linear momentum is also a wave. और जो ये वेव है इसकी वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स दिस मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मान लो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज मूविंग वेरी फास्ट एंड वन इज मूविंग वेरी स्लो. मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, सेम मास के हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, वन इज मूविंग फास्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट, and we have another object which is moving, this is moving slow. मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जो लैम्डा है, वेव लेंथ. व्हाट इज वेव लेंथ? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. जो वेव लेंथ है वो क्या है? डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये फास्ट मूव कर रहा है, मान लो इसका जो मोमेंटम है वो बराबर है mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी. अगर ये फास्ट मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. जब इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इसकी वेव लेंथ कम होगी. मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेव लेंथ कम होगी. सो इस पार्टिकल की जो वेव लेंथ है वो कम होगी, स्मॉल वेव लेंथ. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसका जो मतलब वेलोसिटी है वो क्या है? स्लो मूविंग है, वेलोसिटी कम है, मोमेंटम कम है. जब इसका मोमेंटम कम होगा तो वेव लेंथ क्या होगी? वेव लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, इसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी. नाउ लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक. मान लो हमारे पास बहुत सारे बोसॉन्स हैं, दीज बोसॉन्स आर मूविंग वेरी फास्ट. अगर ये फास्ट मूव कर रहे हैं, सपोज दे आर मूविंग वेरी फास्ट, अगर ये फास्ट मूव कर रहे हैं तो इनकी जो वेव लेंथ है वो क्या होगी? स्मॉल वेव लेंथ होगी इनकी. और इन बोसॉन्स की अपनी अपनी एनर्जी होगी, दे हैव डिफरेंट एनर्जी, इनकी अपनी अलग अलग एनर्जी होंगी. जब हम क्या करेंगे, अगर हम इन बोसॉन्स का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे टिल -273 डिग्री सेल्सियस, जब हम इनका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इन बोसॉन्स का जो मोशन है, इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी. जब इनकी स्पीड कम होगी, जब इनकी मोशन कम होगी तो इनका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम किसके बराबर है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. जो लैम्डा है वो किसके? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. जब इन बोसॉन्स का टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे, इनकी जो मोशन है वो कम होगी, इनकी स्पीड कम होगी. जब इनकी स्पीड कम होगी, इनका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? मोमेंटम कम हो जाएगा. जब इन बोसॉन्स का मोमेंटम कम हो जाएगा तो इनकी वेव लेंथ क्या है? वेव लेंथ इंक्रीज होगी. डेफिनेटली वेव लेंथ इनकी इंक्रीज होगी. जब इन बोसॉन्स की वेव लेंथ इंक्रीज होगी तो ये बोसॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, ये वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे. और ये जो वेव्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. जब ये इंटरेक्ट करेंगे दे मर्ज हो जाएंगे, दे विल मर्ज, दीज वेव्स विल मर्ज. जब ये वेव्स एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे, जब ये वेव्स एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे, दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल वेव. ये एक सिंगल वेव में कन्वर्ट होंगे. जब सिंपली
हम क्या करते हैं, जब बोसॉन्स का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, उनकी मोशन कम होती है, उनकी स्पीड कम होती है। जब उनकी स्पीड कम होती है, उनका जो मोमेंटम है वो कम होता है। जब मोमेंटम कम होता है तो डेफिनेटली उनकी जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है। वेव लेंथ जब इंक्रीज होती है, वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। जब वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। वेव्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और ये बिहेव करते हैं लाइक ए सिंगल वेव, और इट विल बिहेव लाइक ए सिंगल सुपर एटम, जिसको हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। थैंक यू वेरी मच।